عزیز طلبہ، تاریخ کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ سبق نمبر 7، موریہ عہد کا بھارت۔ موریہ عہد کا بھارت۔ کیا آپ جانتے ہیں 6 صدی قبل مسیح میں ایران میں سائرس نامی بادشاہ نے ایک بڑی سلطنت قائم کی تھی۔ یہ سلطنت شمال مغربی بھارت سے روم تک اور افریقہ میں مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ تقریباً 518 قبل مسیح میں داریوش یعنی ڈیریس نامی ایرانی شہنشاہ نے بھارت کے شمال مغربی علاقے اور پنجاب تک کا کچھ حصہ فتح کر لیا تھا۔ دار نے اس علاقے کے کچھ سپاہی اپنی فوج میں شامل کر لیے تھے۔ یونانی مورخین کی تحریروں سے ان کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ شہنشاہ دار کے عہد میں بھارت اور ایران کے درمیان سیاسی تعلقات قائم ہوئے۔ اس بنا پر تجارت اور فنون لطیفہ کے لین دین میں اضافہ ہوا۔ شہنشاہ دار نے اپنی سلطنت میں ہر طرف دارک نامی ایک ہی قسم کے سکے جاری کیے، جن کی وجہ سے تجارت میں آسانی پیدا ہو گئی۔ شہنشاہ دار کے عہد میں راجدھانی کے شہر پرسیپولس کی تعمیر کی گئی۔ یہ مقام ایران میں ہے۔ یونانی شہنشاہ سکندر کا حملہ۔ یونانی شہنشاہ الیگزینڈر عرف سکندر نے 326 قبل مسیح میں بھارت کے شمال مغربی علاقے پر حملہ کیا۔ دریائے سندھ عبور کر کے وہ تکشلا پہنچا۔ اس راستے پر بعض مقامی راجاؤں نے اس سے سخت مقابلہ کیا۔ اس کے باوجود سکندر پنجاب تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس مہم کے دوران سکندر کے سپاہیوں کو طرح طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے وطن لوٹنے کے لیے بے چین ہو گئے تھے۔ انہوں نے سکندر کے خلاف بغاوت کر دی۔ سکندر کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ بھارت میں فتح کیے ہوئے علاقوں کے انتظام کے لیے اس نے یونانی افسران کا تقرر کیا اور انہیں سترپ کا لقب دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے وطن لوٹنے لگا۔ راستے میں بابل کے مقام پر 323 قبل مسیح میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ مقام موجودہ عراق میں ہے۔ سکندر کی آمد کی وجہ سے بھارت اور مغربی ممالک کے درمیان تجارت بڑھی۔ سکندر کے ساتھ مورخین تھے۔ انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے مغربی ممالک سے بھارت کو متعارف کرایا۔ یونانی مجسمہ سازی کا بھارت کے طرز فن پر اثر پڑا۔ اس سے قندھار یعنی گاندھار نامی طرز فن وجود میں آیا۔ یونانی بادشاہوں کے سکے خاص طرز کے ہوا کرتے تھے۔ سکوں کی ایک جانب بادشاہ کی اور دوسری جانب کسی یونانی دیوتا کی تصویر ہوتی تھی۔ سکے پر اس بادشاہ کا نام ہوتا۔ سکندر کے سکے بھی اسی قسم کے تھے۔ بعد کے زمانے میں بھارت کے راجاؤں نے بھی اسی طرز کے سکے ڈھلوانے کا آغاز کیا۔ موریہ مملکت۔ چندرگپت موریہ۔ چندرگپت موریہ نے موریہ مملکت کی بنیاد ڈالی۔ مگدھ کے راجا دھنانند کی ظالم حکومت سے لوگ بیزار تھے۔ 325 قبل مسیح میں چندرگپت موریہ نے اسے شکست دی اور مگدھ پر اپنا اقتدار قائم کیا۔ اس نے اونتی اور سوراشٹر کو فتح کر کے اپنی سلطنت کو وسیع دینے کا آغاز کیا۔ سکندر نے جن افسران کا تقرر کیا تھا، ان میں سکندر کی موت کے بعد اقتدار کے لیے لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ سیلوکس نکیٹر سکندر کا سپہ سالار تھا۔ سکندر کی موت کے بعد وہ بابل کا حکمراں بن بیٹھا۔ اس نے شمال مغربی بھارت اور پنجاب پر حملہ کیا۔ چندرگپت موریہ نے اس کے حملے کا کامیابی کے ساتھ جواب دیا۔ سیلیوکس نکیٹر کو شکست دینے کی وجہ سے افغانستان کے علاقے کابل، قندھار، ہیرات اس کی مملکت میں شامل ہو گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں سنسکرت کے ڈرامہ نگار وشاکھ دت نے مدرا راکشس نامی ڈرامہ لکھا؟
इस ड्रामे में उसने ये कहानी बयान की कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह धनानंद का खात्मा करके अपना आज़ाद इक़्तिदार कायम किया। इस कहानी में आर्य चाणक्य या कौटिल्य के किरदार को ख़ास अहमियत दी है। सेल्यूकस निकेटर का सफ़ीर मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। उसकी किताब इंडिका के मज़कूरात मौर्य अहद के भारत के मुताले का अहम ज़रिया हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने रियासत गुजरात में जूनागढ़ के करीब सुदर्शन नामी बंद तामीर किया था, जिसके बारे में एक कुतबे पर इबारत कुंदा है। क्या आप जानते हैं, जैन रिवायत के मुताबिक ये बात तस्लीम की जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मज़हब कबूल किया था। उम्र के आखिरी दिनों में उसने तख्त व ताज को तर्क कर दिया। उसने बाकी जिंदगी कर्नाटक के श्रवणबेलगोल के मकाम पर बसर की। वहीं उसका इंतकाल हो गया। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त के तख्त व ताज छोड़ने के बाद उसका बेटा बिंदुसार मगध का राजा बना। बिंदुसार के मरने के बाद उसके बेटे अशोक ने 273 कब्ल मसीह में इक़्तिदार संभाला। तख्त नशीन होने से पहले उसे तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था। गवर्नर के ओहदे पर रहते हुए उसने तक्षशिला में उठने वाली बगावत को बड़ी कामयाबी के साथ कुचल दिया। मगध का सम्राट बनने के बाद उसने कलिंग पर चढ़ाई की। कलिंग हुकूमत का इलाका आज की रियासत उड़ीसा में वाक़ था। सम्राट अशोक ने कलिंग पर फतेह हासिल की। शुमाल मगरिब में अफ़गानिस्तान और शुमाल में नेपाल, जुनूब में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक, इसी तरह मशरिक़ में बंगाल से मगरिब में सौराष्ट्र तक सम्राट अशोक की हुकूमत फैली हुई थी। कलिंग की लड़ाई कलिंग की लड़ाई में होने वाले खून खराबे को देखकर अशोक ने दोबारा कभी जंग न करने का फैसला किया। सच्चाई, अदम तशद्दुद यानी अहिंसा, रहमदिली व हमदर्दी और माफ़ी का रुझान जैसी खूबियाँ उसकी नज़र में अहम थीं। अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए उसने जगह जगह कुतबे और सुतून कुंदा करवाए। ये तहरीरें बराहमी रस्मुल ख़त में हैं। इन तहरीरों में उसने खुद का जिक्र देवानम पियो पियोदसी यानी खुदा का चहेता प्रियदर्शनी के तौर पर किया है। रस्म ताजपोशी होने के 8 बरसों बाद उसने कलिंग पर फतेह हासिल की थी और वहाँ की तबाही व बर्बादी देखकर उसके दिल की कैफियत बदल गई। इस बात का जिक्र उसकी एक तहरीर में है। दिल्ली टोपड़ा के मकाम पर सम्राट अशोक के एक कुतबे में चमगादड़ों, बंदरों, गेंडों वगैरह का शिकार करने और जंगल में आग लगाने की सख्त ममानत की गई है। इसे हमेशा ज़हन में रखें। सम्राट अशोक का पैगाम: वालदैन की खिदमत करना बेहतर अमल है। जो फतेह मोहब्बत का जज्बा परवान चढ़ाए वही असल फतेह है। आइए अमल करके देखें। भारत के नक्शे के खाके में सम्राट अशोक के कुतबे और सुतूनी कुतबे जाहिर करने वाले मकामात की निशानदेही कीजिए। मज़हब की इशाअत के लिए अशोक के इक़दामात। अशोक ने बज़ाते खुद बुद्ध मज़हब कबूल किया था। उसने पाटलिपुत्र में बुद्ध मज़हब की तीसरी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करवाई थी। बुद्ध मज़हब की तबलीग व इशाअत के लिए उसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। जुनूब मशरक़ी एशिया और वस्ती एशिया के ममालिक में भी उसने मज़हब की तबलीग के लिए बुद्ध भिक्खु रवाना किए थे। उसने कई स्तूप और खानकाहें तामीर करवाईं। अशोक के अवामी फलाह व बहबूद के काम। अशोक ने रियाया की भलाई और खुशहाली के कामों पर बड़ी तवज्जो दी। मसलन इंसानों और जानवरों को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम करने की सहूलतें मुहैया कीं। कई सड़कें बनवाईं।
साये के लिए रास्ते के दोनों जानिब दरख्त लगवाए, सराएं बनवाईं, कुएं खुदवाए। आइए अमल करके देखें। आपके इतराफ में कौन सी तंजीमें अवामी फलाह के कौन से काम अंजाम देती हैं, इसकी रुदाद तैयार कीजिए। मौर्य अहद का इंतजाम हुकूमत। मौर्य ममलकत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उमूर हुकूमत की सहूलत के लिए ममलकत को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था। हर हिस्से की अलग राजधानी थी। 1. मशरकी हिस्सा तोशाली यानी उड़ीसा। 2. मगरिबी हिस्सा यानी उज्जैनी यानी मध्य प्रदेश। 3. जुनूबी हिस्सा स्वर्णगिरी यानी कर्नाटक में कनकगिरी। 4. शुमाली हिस्सा तक्षशिला यानी पाकिस्तान। उमूर हुकूमत में राजा को मशवरे देने के लिए मजलिसे वज़रा हुआ करती थी। मुख्तलिफ सतहों पर काम करने वाले कई अफसरान थे। इन सब की निगरानी करने के लिए और दुश्मन की हरकात व सकनात पर नज़र रखने के लिए फ़आल जासूसी का महकमा था। मौर्य अहद की अवामी ज़िंदगी। मौर्य अहद में ज़रई पैदावार को बड़ी अहमियत हासिल थी। ज़राअत के साथ साथ तिजारत और दीगर सनतों ने भी खूब तरक्की की थी। हाथी दांत पर नक्काशी का काम, पारचा बाफी, रंगरेजी, धातु के काम जैसे कई पेशे थे। स्याह रंग की चमकदार मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। जहाज साजी भी बड़े पैमाने पर की जाती थी। धातुओं के काम में दूसरी धातुओं के साथ साथ लोहे की चीज़ें बनाने की तकनीक ने भी काफ़ी तरक्की कर ली थी। शहरों और देहातों में जश्न और तकरीबात मुनक़िद की जाती थीं। लोगों की तफरीह के लिए रक़्स और नगमा सराई के प्रोग्राम होते थे। कुश्ती के खेल और रथ की दौड़ मकबूल आम थीं। चौसर यानी पासों का खेल और शतरंज लोग बड़े शौक से खेलते थे। शतरंज को अष्टपद कहा जाता था। मौर्य अहद का फन और अदब। सम्राट अशोक के अहद में संग तराशी के फन को उरूज हासिल हुआ। अशोक के बनवाए हुए सुतून भारतीय संग तराशी के आला नमूने थे। उसने जो सुतून बनवाए उन पर शेर, हाथी और बैल जैसे जानवरों के बहुत ही उम्दा मुजस्सिमे हैं। सारनाथ के सुतून पर जो चक्र है वो भारत के परचम पर नजर आता है। इस सुतून पर चारों तरफ शेर हैं। सामने से देखने पर इनमें से सिर्फ 3 ही नजर आते हैं। ये भारत का कौमी निशान शाही मुहर यानी राज मुद्रा है। उस जमाने में खोदी गई 12 बार टेकरियों पर जो गुफाएं हैं वो बेहद मशहूर हैं। ये गुफाएं बिहार में हैं। भारत में जो गुफाएं हैं उनमें ये गुफाएं कदीम तरीन हैं। सम्राट अशोक के इंतकाल के बाद मौर्य ममलकत का ज़वाल शुरू हो गया। मौर्य अहद के बाद भारत में कई हुकूमतें वजूद में आईं। कुछ ममलकतें भी उभरीं। मौर्य ममलकत कदीम भारत की सबसे बड़ी ममलकत थी। मौर्य अहद के बाद रूनुमा होने वाले सियासी और तहजीबी इनकलाबात के बारे में हम अगले सबक में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं सारनाथ में वाक़े अशोक के सुतून यानी लाट को सामने रखकर भारत की शाही मोहर बनाई गई है। सारनाथ के बुनियादी सुतून पर 4 शेर हैं। हर शेर की मूर्ति के नीचे आड़ी पट्टी पर चक्र है। उनमें से हमें एक ही चक्र मुकम्मल तौर पर दिखाई देता है। चक्र के एक जानिब घोड़ा और दूसरी जानिब बैल यानी सांड है। शाही मोहर का जो पहलू नजर नहीं आता उस पहलू पर इसी तरह हाथी और शेर बने हुए हैं।